सभासद माननीय सभापति जी। Now, memorandum laying of papers on the table. Sri Santosh Kumar Gangwar. Let me, Santosh Kumar Gangwar. उल्लेखित विवरण को मैं सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। Dr. Sanjeev Kumar Balian. माननीय सभापति जी, मैं आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 2 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। Sri Rosahab Danve. मैं आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। Sri Jayant Sinha. To lay the papers mentioned against my name at serial number 2 in the revised list of business today. Report to the, yes, report to the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare, Sri Satish Chandra Misra. I beg to present the 80th report in English and Hindi of the Department related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on the Food Safety and Standard Amendment Bill 2014. Now, let me finish this formal business. आप लोग बैठिए. Let me finish this formal business. आप लोग बैठिए. Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice, Dr. E.M. Sudarshan Chepan. Sir, I made permission to lay the 72nd report of Personal Public Grievances, Law and Justice Committee. Statement by Minister Sri Radha Mohan Singh to lay on the table. मैं सभा पटल पर रखे जाने वाले कागजात के संबंध में आज की कार्य सूची में उल्लेखित अनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की खेती संभावनाएं और प्रभाव संबंधी रिपोर्ट सभा पटल पर रखने की अनुमति मांगता हूँ। Now, statement regarding list of government business, Sri Mukhtar Abbas Naqvi. Sir, with your permission, sir, I rise to announce that government business during the week coming from 1st December 2014 will be Merchant Shipping Amendment Bill 2013, Merchant Shipping Second Amendment Bill 2013, consideration of the passing of following bill as passed by Lok Sabha: Indian Institute of Information Technology Bill 2014, Central Universities Amendment Bill 2014, Constitution Schedule Caste Order Amendment Bill 2014, consideration on passing of the Textile Undertaking Nationalization Law Amendment Bill 2014 after the passing by the Lok Sabha, the consideration and return of the bill relating to the supplementary demand of grant Journal 2014-15 after it is passed by the Lok Sabha. Okay, thank you. No, one by one. Okay. Now, Mr. एक-एक करके बोल लें। एक-एक करके Mr. Anand Sharma. Yes, sir. एक मिनट बोल दिया। Yes. बोल दिया। I have, सर, I have called Mr. Anand Sharma. Yes, I can do that. एक मिनट बैठ जाइए। Yeah. Yes. Sir, I wish to draw the attention of this august house through you to a tragic killing of Indian citizens held hostage in Iraq. Sir, earlier when some Indians were released, the government had made this statement, and the Honorable External Affairs Minister is present in this house, assuring the house and assuring the families of all those who were held hostage that the government has succeeded in establishing contact. Also, the government has been using the services of the Iraqi Red Crescent and other sources to secure their safe release. So the truth is that it was on the 15th of June 2014
that 40 Indians who were working there, mainly belonging to Punjab and some from Kolkata, 2 of these were elderly citizens. They were taken hostage. They were taken to a hilly terrain, as per the revelations which have come now, and shot. 39 of them were killed on the 15th of June itself, sir. One survivor is there who pretended to have been shot but actually fortunately survived. Otherwise, this would not have been known. On 22nd of June, the government of India made a statement, official statement, published in all newspapers, and it says that the Modi government has tracked the captors, established contact, and assures that all the hostages are safe. This is 7 days after the killing. 7 days after the killing. And I must also say that both the houses have also been misled, but what is more important, that if this was known, why this was not revealed? If this was not known, why the assurance was given? अब आप एक तरफ से तो उन परिवारों को जो त्रस्त हैं, दुखी हैं, आपने आश्वस्त कर दिया कि सरकार ने, और शब्द भी मैं बयान दे रहा हूं MEA के प्रवक्ता का 22 जून का, सैयद अकबरुद्दीन का। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने बयान दिया, अगस्त महीने में भी आपने कहा, आपको याद हो जब जून को 15 जून को ही हादसा हो गया था, तो ट्रैक कौन से कैप्टर्स को किया, कैसे ये एस्टेब्लिश हुआ कि वो सब स्वस्थ हैं, कुशल हैं और उनकी रिहाई हो जाएगी, देश को तभी बता देना चाहिए था। और उसके बाद एक पत्र जो उनके परिवारों को कहा गया कि हमारे दूतावास से ये पत्र आ गया है और वो सब सुरक्षित है, बातचीत हो रही है उनकी रिहाई के लिए। तो एक गजब की बात है कि इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं था। पहले जो लोग छूटे, जो केरला के थी नर्सेज, उसके बारे में माननीय उपसभापति महोदय, सदन सब जानता है, और हमें सबको राहत हुई थी, खुशी हुई थी। उसमें केंद्र सरकार, केरला की सरकार और कुछ केरल के जो वासी हैं, जो वहां पर काम करते हैं, व्यापार करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था रिहाई में। पर आज इस पे ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये जब इतनी गंभीर बातें हो रही हैं, एक और गंभीर घटना है जिसका और साथी अभी चर्चा करेंगे, मेरे साथी भी चर्चा करेंगे, जो देश में कल हुई है। पर पहले हम इस पे बात करना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। क्या सरकार सही मायने में अंधकार में थी और सरकार बैठी रही, एक आश्वासन, 2 आश्वासन, 30 आश्वासन देकर? आज भारत की यह क्या स्थिति है कि जहां खाड़ी के देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत हमारे सरकार, उन सरकारों से बात करके, वहां के शासन प्रशासन से संबंध रख के, संबंधों को सुधार कर सुरक्षित करे और सुनिश्चित करे। इस सदन में मुझे एक बात बड़े दुख से कहनी है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो रही, देश के नागरिक इस तरह से उनको पकड़ा गया, मारा गया। दूसरी तरफ भी है जो कल से चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार सदन में आकर एक शब्द, और सदन के बाहर एक शब्द कभी इस पर नहीं बोले, एक शब्द। ये वही प्रधानमंत्री है जो कहते थे हम आंख मिलाकर नहीं, आंख दिखाकर बात करेंगे। बहुत बहुत बातें कही थी, हम वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि जो कहा था कि हम ये करेंगे, हमको मालूम है कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ दिखावे की बातें थी। राज आपकी जवाबदेही बनती है सरकार की, आपके प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है, आपकी समस्त सरकार की, आपके मंत्रिमंडल की, और आप सदन को बताएं कि क्या हुआ है और क्यों यह बयान दिया गया सदन में अगस्त महीने में और 22 जून को। किस आधार पर यह देश को बताया गया, किस आधार पर उन परिवारों को बताया गया
कि सब कुछ ठीक है, आपको मालूम है कहां है, वो तो मर चुके थे। तो इस पे ये सदन अपना दुख भी प्रकट करता है, हमारा सबको दुख है जो हुआ है, हम इसकी निंदा भी करते हैं और इसलिए सरकार से इस पे जवाब मांगते हैं। Oh, Minister want to react? Okay. Oh, सभापति जी, no. मैं आखिर में बोलूंगी, 1 मिनट, मैं आखिर में बोलूंगी। जितने साथी बोलना चाहते हैं बोलने, सिर्फ एक बात कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। दे हैव बीन किल्ड मत कहिए, ज्यादा से ज्यादा कहना है तो रिपोर्टेडली किल्ड कह दीजिए, क्योंकि तथ्य मेरे पास है, मैं बताने वाली हूँ। बार बार यहाँ अगर ये कहा जाएगा कि वो मार दिए गए हैं, वो मार दिए गए हैं, तो ये गलत मैसेज जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कम से कम ये सावधानी बरत लें, रिपोर्टेडली किल्ड कह के अपनी बात करें, फिर मैं जवाब दूंगी। So you will reply later, eh? Okay then. All right. That is the sense of the house. Okay. Yeah. ये बहुत ही दुखद घटना है अगर ये सत्य है। ये कल से this is a subject we are all concerned. मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर को And make us all correct sad. कर रहे हैं। श्रीमान, मैं श्री आनंद शर्मा साहब ने जो बात उठाई है उसको संबद्ध करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्टेडली किल्ड, ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर करे वो जिंदा हो, न मारे गए हों, लेकिन जो परिवार इस उम्मीद में थे आपके पहले बयान के बाद कि वे सुरक्षित हैं और सुरक्षित आ जाएंगे, उनको बहुत जबरदस्त निराशा और हताशा है। श्रीमान, आज ही मैंने सुबह जब अपना फोन खोला तो व्हाट्सएप पर एक बहुत लंबा बीजेपी के किसी व्यक्ति द्वारा डाला गया मैं था, जिसमें तमाम बातों के अलावा ये कहा गया कि इतने लोगों को वहां से निकाल के ले आए, इतने लोगों को वहां से निकाल के ले आए, और क्या किसी ने शोर नहीं मचाया, और 1 रुपया अगर का दाम बढ़ जाए तो आग लगा देते हैं और गाड़ी रोक देते हैं और रेल रोक देते हैं और ये कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, ये सारी उपलब्धियां हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ISIS जिस तरीके से काम कर रहा है और जिसके बारे में एक शब्द कहा नहीं जा रहा है, और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री सारी दुनिया में जाके जो काम विदेश मंत्री को करना चाहिए वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और सारी दुनिया में जाके ऐसा लगता है जैसे विश्व विजयी हो गए। अश्वमेध का उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया, जिधर जा रहे हैं कोई इनकी बाग नहीं रोक सकता है, वो काम कर रहे हैं और कोई देश की परवाह नहीं कर रहा है। सीमा पर कल हमारे सैनिक मारे गए, कल भी मारे गए। ये सारी चीजें हैं, सब उसका जवाब दें। देश दुखी है, देश निराश है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, और ये गवर्नमेंट जितनी लंबी बातें करती थी उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं कर पा रही। हमें चिंता है, पूरे सदन को चिंता है, देश को चिंता है। आप मंत्री जवाब देने के लिए जब खड़ी हुई हैं तो सारी चीज बताएं, और बॉर्डर पे जो हो रहा है उसके बारे में बताएं, और आप क्या कर रहे हैं वो बताएं। Sir Derek O'Brien, be very brief, eh? Be very brief. Only 1 minute. Yeah. Only 1 minute. Sir, far away from the magical mystery lights of Madison Square Garden and the papaya and toast breakfasts in Brisbane is the reality of Iraq. And that is why I've only lost my voice, sir, but there are Indians in Iraq who have perhaps, and I hope not, lost their lives. I hope what we have read in the media is only reported and not the truth, and I hope there is still a flicker of hope. But the bigger issue here, sir, is what we heard in June, and that is the concern. June, certain statements were made which caused short-term gain. Short-term gain, but now the situation as we see it, the reality is the long-term pain. I would request and urge this government, enough has been done on short-term gain
before they came into power. Do not give this nation any more long-term pain. Come clean with the facts. We are all concerned here. We are all united in this cause. Thank you, sir. Kumari Mayawati. Kumari Mayawati. माननीय उपाध्यक्ष जी, इराक में जो हमारे देश के भारतीय लोग उधर फंसे हुए हैं, हालांकि उसमें से कुछ लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन कल से जो अभी एक खबर सुनने के लिए मिल रही है कि 40 भारतीय नागरिक वहां पर और फंसे हुए थे, और उसमें से 39 जो भारतीय नागरिक हैं तो उनका कुछ अता पता नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो मारे गए हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। खबरें यही आ रही हैं कि एक अभी जिंदा है और 39 का कोई अता पता नहीं है। ये मामला काफी गंभीर है, क्योंकि जो लोगों के बारे में इस किस्म की खबरें आ रही है कि उनका कोई अता पता नहीं है, तो उनके परिवार के लोग तो यहाँ अपने देश में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चिंतित हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। जैसे शुरू में जो केरल की नर्सें उधर फंसी हुई थी, उनको सुरक्षित निकाला गया, तो ये जो 39 नागरिक उधर फंसे हुए उनको भी सुरक्षित निकाला जाए। और हम तो कुदरत से यही प्रार्थना करेंगे कि वो उधर ही कहीं छुपे हुए, वो बेचारे ना मारे जाए, ना मरे, उनकी हत्या ना की गई हो, ज़्यादा ठीक है। तो और सरकार गंभीर होकर तो उनको वहाँ से वापस लाने का पूरा प्रयास करे। और इसके साथ ही तो मान्यवर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। कल भी घटना घटी है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। इस मामले में भी सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। ये मामले काफी गंभीर हैं, और खास तौर से जो इराक में 39 नागरिक का जो अभी मालूम नहीं पड़ा है, तो हम चाहेंगे कि सरकार इस मामले में अपना रिपोर्ट दे। और जो उधर अभी कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है, तो यदि वो नहीं उनकी हत्या की गई है तो उनको निकालने का पूरा प्रयास करे, ऐसा हमारा सरकार से आग्रह है। त्यागी, बी ब्रीफ। त्यागी जी ब्रीफ। पिछले सदन में मेरे ही सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा था, मैंने कहा था कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इराक का बयान है कि वो लोग मार दिए गए हैं। उनमें से कुछ लौट करके आए हरजीत सिंह थे, उनका वक्तव्य मैंने इसी सदन में पढ़ के सुनाया था। बांग्लादेश से जो बच के आए हैं वो कल से कह रहे हैं कि दे आर नो मोर। मैं चाहता हूं कि वो हो सलामत, लेकिन ये हमारी विदेश नीति की डिप्लोमेटिक फेलियर है। आप उन कामों में लगे हुए हैं जो आपके बस की नहीं है। आप जापान में जाते हो, चीन के खिलाफ बयान देकर आते हो। आप बेवजह नेपाल में जाकर के 2 दिन से नेपाल बंद है। आप कौन होते हो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिक्टेट करने वाले? आप साम्राज्यवादी हैं। जनकपुर बंद है 2 दिन से। दुनिया में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जाकर के दूसरे मुल्क में जाकर के पब्लिक मीटिंग नहीं की। आप वहां के साम्राज्यवादी बनना चाहते हो? तो सर, विदेश नीति पर ब्यौरेवार अगले सप्ताह बहस होनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली वी हैव बीन आइसोलेटेड एंड देयर इज नो फ्रेंड ऑफ इंडिया रिमेनिंग इन द वेस्ट एशिया। आप जाकर के यूएनओ में 60 साल में पहली बार हुआ है कि जब जाकर के आपने पीएलओ के किसी भी डेलीगेशन को मिलने का टाइम नहीं दिया, और आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ टोस्ट ले रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। इसलिए खाली इराक का मामला नहीं, आज पूरी दुनिया में हम डिप्लोमेटिक आइसोलेट हो रहे हैं। और अरब वर्ल्ड में अपना एक दोस्त नहीं बचा। मुझे स्वेज कैनाल से लेकर के और मिस्र तक की क्रांतियां याद है। जब जवाहरलाल नेहरू थे, पूरी दुनिया की पंचायतें हमारे थी। हमारा कोई मित्र नहीं बचा। ओके, बैठिए। श्री पी राजीव। Thank you, sir. I am Just sharing the be brief. yes, I am sharing the concern expressed by my learned colleagues. Actually, we have raised the issues of Malayali nurses in this house itself, and we had succeeded to bring back them to India, escape them from the custody of the ISI, sir. But at the
time the government had an assurance to this house, they had succeeded to establish relationship with the ISIS and using some other sources. At that time, we demanded to know what are the steps taken by the government. Then the minister gave a reply that is not good for the life of the hostages, 40 hostages, they were in Iraq, sir. Actually, sir, this is the contribution of this government. The 6 months balance sheet in the newspapers, the main contribution in the foreign affairs, foreign relationship, and the Prime Minister Modi became a magnet to attract all foreign leaders. But this is the fate, sir. Actually, this is India's position on Palestine, and India's the government position not allowed to pass a resolution in this parliament has created a hostile approach by ISIS and other countries. The shift in Indian foreign policy has created this situation. I don't know whether the external affairs minister is aware of these things, because PM is handling all these external affairs matters. So I request the PM should come to this house, because the PM is the de facto external affairs minister of this country. It's okay now, Dinsaji. No, listen, I am called. No, don't interfere like that. I called him. See, no, this is not the way. Sit down. I will accommodate as far as possible. Thank you, sir. Because this is an issue, Dinsaji, please. But don't bring in controversial issue. This is a time not to bring in controversial issue, I am telling you. On this issue, all of us are united. We are all sad about what happened, if it has happened. As my Honorable Minister said, let us pray that it not happen. Let us hope it did not happen. Yes, बोलिए. Thank you very much, sir. ये जो आज यहाँ पर इशू उठा है, ये पंजाब के ही लड़के हैं जो 39 हैं. तो हम भी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेन अफेयर से मिलते रहे हैं. चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मिले, हम भी मिले थे, और उन्होंने ये कोशिश भी बहुत कर रहे हैं. उनको इन्होंने विश्वास दिया, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा चिंता है. आज मैं समझता हूँ हाउस में जब ये बताएंगे कि किस सिचुएशन में है, तो कुदरती है उनके पेरेंट्स हैं, उसके परिवार हैं जो, उनको भी जरूर ये हौसला मिलेगा कि हाँ कोई वो जीते भी है, नहीं जीते. तो मैं ये समझता हूँ कि आज क्लियर भी कर दिया. और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये पहले भी बहुत सिंपैथेटिक है हर जगह पर, लेकिन अगर वे बताते रहेंगे हमें भी और उनके परिवारों को, तो उनको थोड़ी बहुत तसल्ली होती रहेगी. मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. श्री भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह. I wish that they are safe as minister has intervened. But sir, this is a matter of human rights matter. League of Nations was made in 1990. UNO was founded in 24th October 1945. It is time that the Indian government, I have given also a special mention, we should plead for a world government, for a world parliament, where such issues can be taken up. Sir, it's all right. What is the problem, sir? No. You will not allow 1 minute. I am talking something. Yes, we will think about world government. Yes. Sir, no. Sir, I have not completed, sir. Sir, I wish ऐसे लग रहा है. How long you want need to form a world government? You tell me. No, sir. हमें ऐसे लग रहा है कि भारत सरकार और भारत देश मजबूत होगा अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी. लेकिन यहाँ लग रहा है जो मान्यवर सदस्य बोल रहे हैं कि सर हमारे जो विदेश मंत्री हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको फ्रीडम दिया गया है कि काम करने के लिए, उनको लाने के लिए इंटरनल प्रॉब्लम भी है गवर्नमेंट के अंदर. इसीलिए क्या ऐसी बात है कि इंटरनल प्रॉब्लम के कारण आज विदेश मंत्री जो करना चाहते हैं, ये बाहर की चर्चा है सर. This is the talk of, this is the public perception. We have to discuss this in the house. No, okay, sit down. Pramod Tiwari. जो मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं बहुत दुखी मन से, बहुत पीड़ित मन से कह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आशंका है अगर वो निर्मूल साबित हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई दूसरा नहीं होगा. लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इराक के मोसूल से जो 40 भारतीय गए थे साथ में, उनके साथ पंजाब के लोग भी हैं, हिमाचल के लोग भी हैं, और 2 लोग कलकत्ता के भी हैं. सवाल ये नहीं है, सवाल दूसरा है. सवाल ये है कि सरकार आज हमें एक साफ बताए कि ये जो सफी हसन का बयान है बांग्लादेश के, इसके बयान को हम किस बात पर विश्वास न करें. दूसरी बात हम जानना चाहते हैं, सरकार से मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है. 3 नाम ले रहा हूं, रंजीत सिंह, किशन सिंह और हरीश, इन 39 में थे.
सरकार आज हमें ये बताए ये कहां है और सरकार का संपर्क इनसे कब हुआ है। मैं आपसे इतना जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, माननीय विदेश मंत्री जी जब बोले उसके पहले मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, सच्चाई तो यह है ना, हमें आपकी बात पे विश्वास अब रह गया है और ना आपके प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास रह गया है। वो कुछ बोले, सच्चाई थी तो बोलने से जैसे परहेज है उनको। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये आज संसद चल रही है, पार्लियामेंट के लिए क्या इज्जत बची है प्रधानमंत्री जी के दिल और दिमाग में कि इतने महत्वपूर्ण विषय हो रहे हैं। मुझे सुन लीजिए मेरी एक बात, आज 9 भारत के जवान मारे गए हैं सीमा पे और आप गले लगा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वहां पर आप जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का आचरण है, वो प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने के लिए जाते हैं। श्री नाजिब रहमान, पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे नो नथिंग एल्स विल गो ऑन रेकॉर्ड। नाजिब रहमान, माननीय नाजिब रहमान, माननीय विदेश श्री नाजिब रहमान, माननीय विदेश मंत्री ने आज से 4-5 महीने पहले सदन को यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार हर एक भारतीय नागरिक की सुरक्षा से के संबंध में चिंतित है और लौटा लिए जाएंगे, लोग सुरक्षित वापस आ जाएंगे। और एक 5 महीने का काल गुजर गया, अगर आज ये खबर नहीं आती तो ये चर्चा भी नहीं उठती। और भारत सरकार इस संबंध में इतने लंबे अरसे तक इतने सारे भारतीय नागरिक की सुरक्षा के बारे में क्या कर पाई, इसकी जानकारी सदन को उन्होंने अपने तय देनी चाहिए थी। आज की इस खबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। हमें दुख इस बात का होता है कि क्या उन तमाम किडनैप्ड लोगों के रिश्तेदारों से बाकायदा संपर्क रोज होता है, क्या उनका समाधान है, क्या वो जीवित हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? श्रीमती जया बच्चन, विदेश श्रीमती जया बच्चन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, एब्सोल्युटली सर। मैं ये सोचती हूँ कि ये वक्त नहीं है कि हम यहाँ बैठ के अपने अपने पॉलिटिकल्स लड़ाई को लड़ें और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं बिल्कुल आपसे सहमत रखती हूँ। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आप लोगों ने इन परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क रखा, उन्हें किसी तरह की आश्वासन दी? आपने हाउस में जरूर दिया है, मगर मैं ये सोचती हूँ कि उन फैमिलीज को आश्वासन देना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया कि उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित है, आप कह तो रहे हैं चिंतित है, मगर आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की या सिर्फ मंत्री और प्रधानमंत्री ही काम करेंगे? ऐसा नहीं है कि बाकी मंत्रियों को नहीं करना चाहिए। अगर आपको मौका मिलता है, आपके करीब है, तो आप उनसे बात करिए। आप जानते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ ये हुआ कि नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, दे नीड टू बी अश्योर्ड। ओके, थैंक यू। नाउ शरद यादव जी। डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक तो ये है कि इस खबर का मुकम्मल और पक्की तौर पर कोई सरकार को मालूम है कि नहीं। एक नंबर 2 ये कि साउथ एशिया में जितना रोजगार हमको जो अरब का क्षेत्र है उसमें मिलता है, यानी आप मिडिल ईस्ट, तो हम लोगों की जो विदेश नीति है वो अकेले आपके नहीं, यूपीए के जमाने से बदलाव का रास्ता बना है। और आप जो है वो आपकी खबरों के, आपके वहां जो प्रयास हैं, उन प्रयासों में उस इलाके के लोग विश्वास में कम लगते हैं मुझको, क्योंकि जो इजराइल है और जो पैलेस्टीनियन है, उनका जो विवाद है वो पूरे उस इलाके का बहुत बड़ा विवाद है, वो दुनिया का भी विवाद है। तो निश्चित तौर पर मैं विदेश मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि आप जिस प्रयास में लगे थे, जो सब लोगों ने कहा कि साल भर से प्रयास चल रहे हैं, इस मामले में मत बताइए, लेकिन आपका जो उस इलाके में, जो आपका उस इलाके में जो डिप्लोमेसी के चलते किस रास्ते से कहां तक आप पहुंचे हैं,
ये बहुत ऐसी बात है कि आज पक्का और मुकम्मल नहीं पता चल रहा है। एक मीडिया एक चैनल ने दिखाया, लेकिन सरकार के हाथ चैनल से ज्यादा बड़े। अभी तक सरकार ने इस मामले को किस दूर तक और कैसे इस मामले की पड़ताल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए और सही बात क्या है। यदि सही बात, यदि मान लो ये है कि अभी भी हमको आशा है, तो ये काफी देश के लिए सुकून की बात होगी। लेकिन मैं मानता हूं कि आपकी विदेश नीति में खोट है, और वो खोट के चलते भी आपके हाथ और आपकी जो ताकत है वहां अंदर जाकर के पता लगाने की उसमें कमी आई, ऐसा मैं महसूस करता हूं। ओके राजीव शुक्ला, श्री राजीव शुक्ला। सभापति जी, इराक वाली बात, इराक में बंधकों की बात सारे सदस्यों ने यहाँ पे उठाई और विदेश मंत्री जी का जवाब भी आएगा, लेकिन एक आध सदस्यों ने धीमे स्वर से कश्मीर में 6 जवानों की बात भी रखी। कहीं ना कहीं वो बात भी दबती जा रही। वैसे ही रक्षा मंत्री के उसमें आता है, लेकिन चूंकि सुषमा जी का मुझे वो बयान याद है, जब यूपीए की सरकार थी तो कहा था कि 1 जवान का अगर सर कलम होता है हमारे, तो 11 जवानों का सर कलम करके हमें वापस लेना चाहिए। आज 6 जवान कश्मीर में मारे गए, तो क्या हम 66 जवानों का सर कलम करके दूसरी तरफ से ये सरकार लाएगी क्या? वो बात दबनी नहीं चाहिए। जिस तरह से रोज कश्मीर में आतंकवाद और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना का वहां पे उल्लंघन हो रहा है सीज फायर का, और हमारे जवान मारे जा रहे हैं, बेहतर है कि इराक के साथ विदेश मंत्री जी अगर अपनी पुरानी टिप्पणी को याद करते हुए उसका भी जवाब दे दें, रक्षा मंत्री से पूछ लें, तो हम सब लोग बहुत कृतज्ञ और आभारी रहेंगे। श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, पहले तो मैं अपने सदन के साथियों को ये बता दूं कि मैं कोई संयोग से यहाँ उपस्थित नहीं हो गई हूँ। मैं विशेष रूप से उपस्थित हुई हूँ आपको नोटिस देकर, और मैंने स्वयं कल रात को जब ये सुना तो मुझे लगा कि मुझे दोनों सदनों में इसमें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और इसीलिए सुबह ही मैंने सभापति जी को भी और अध्यक्ष लोकसभा को भी ये नोटिस दिया कि मैं आपके यहाँ भी शून्यकाल के दौरान और वहां भी प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, उसमें इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ आकर मुझे बताया गया कि नहीं, पहले मैं सांसदों को सुन लूँ फिर बोलूँ, तो मैंने उसे स्वीकार किया कि अच्छा है, सांसद लोग अपनी बात कह दें और उसके बाद मैं उसका जवाब दूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने बाकी सभी सांसदों का। जब आनंद शर्मा जी ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई है, तो मैंने एक अपील की कि रिपोर्टेडली किल्ड कह दीजिए, किल्ड मत कहिए, तो उसका उन्होंने मान रखा, और हाँ, आपने भी सहमति सिर हिलाकर दी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी बहन मायावती जी का, जिन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में चीज ये रखी कि उनका अता पता नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि उनको गंभीरता से लेकर के सरकार को छुड़ाने का काम करना चाहिए, और ये भी कहा कि वो इवन भाई शरद यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो जिंदा हो तो हमें सुकून की बात होगी। ये सही लाइन है जो हमें इसमें लेनी चाहिए। दूसरी बात सभापति जी, ये बात कहते कहते बहुत लंबी चर्चा, अलग अलग ढंग, विदेश नीति, प्रधानमंत्री जी, बहुत चीजें आ गई हैं, तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगले सप्ताह मैं प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पर पूरा एक विस्तृत विवरण दूंगी। उसमें जो भी बात आप कहना चाहें कहेंगे, और फिर उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन आज मैं अपनी बात को केवल इसी विषय तक सीमित रखना चाहूंगी जो कल चलाया गया। कल जब मैं सार्क सम्मेलन अटेंड करने के बाद नेपाल से लौटी, तो यहाँ आकर मैंने देखा कि एक समाचार चैनल ये दिखा रहा है, 2 बांग्लादेशी नागरिकों का इंटरव्यू दिखा रहा है, और बाद में एक प्रश्न लगा रहा है, 39 भारतीय कहाँ हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये स्टोरी कल पहली बार नहीं चली है। पिछले 5 महीने में 10 बार ये बात उभर कर आई है। दिल्ली से निकलने वाले एक अंग्रेजी अखबार ने इसे छापा भी है, वहीं से संदर्भ लेकर पंजाब के पंजाबी अखबारों ने भी छापा है। और जो अभी जया जी कह रही थी कि क्या उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क हुआ, जया जी 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार मैं उस परिवार के सदस्यों से मिली हूं, और उनके सामने भी ये बात आई है। 5 बार मिली हूं और ये संदर्भ लेकर मिली हूं। ये एक सोर्स है इस बात को कहने का,
एक सोर्स ये हम समझ लें, जिसका नाम है हरजीत मसीह। वो व्यक्ति है जो वहां से बचकर निकल भागा। वो पहले दिन से ये कह रहा है कि जिस कंपनी में हम काम करते थे वह बांग्लादेशी भी थे और भारतीय भी थे। 15 जून को बांग्लादेशी और भारतीयों को सबको आतंकवादी संगठन के लोग पकड़कर ले गए। वो हमें एयरबिल ले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा बांग्लादेशी अलग हो जाएं, भारतीय अलग हो जाएं। बांग्लादेशी अलग हो गए, उनको उन्होंने छोड़ दिया और भारतीयों को वो साथ ले गए और एक किसी सुनसान जंगल में जाके उन्होंने सबको गोली से उड़ा दिया। मैं बच गया और मैं वापस आ गया। अब उसकी कहानी में बहुत विरोधाभास है। अब हमारे सामने इस कहानी के बाद 2 विकल्प थे। एक विकल्प यह कि हम इसको सत्य मान लें और उनको मृत घोषित कर दें और उनकी तलाश बंद कर दें। दूसरा विकल्प यह था कि उन विरोधाभासों के चलते हम उसको स्वीकार न करें, उसके वर्जन को, और उनकी तलाश जारी रखें। मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता का भी और सरकार की जिम्मेदारी का भी यह तकाजा था कि उसके बयान को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश में लगे और हमने वही रास्ता अपनाया। और जब हम तलाश करने लगे, मैं पहले भी कह चुकी हूं और आज फिर कह रही हूं, हर वो देश जिससे मदद की उम्मीद हो सकती थी हमने डायरेक्ट संपर्क साधा। केवल विदेश मंत्रियों तक नहीं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स तक संपर्क साधा। हमने हर वो संस्था जिससे हमें मदद का भरोसा हो सकता था उस हर संस्था से संपर्क साधा और हर वो व्यक्ति जिससे किसी ने कहा कि इससे सहायता मिल सकती है उससे भी संपर्क साधा। और उस संपर्क साधने का फायदा एक हुआ कि एक के बाद एक 6 सोर्सेज हमें ऐसे मिले जिन्होंने कहा वो मारे नहीं गए, वो मारे नहीं गए। और ये संदेश मौखिक नहीं है, ये संदेश लिखित में मिले हैं। लेकिन वो संदेश चूंकि गोपनीय हैं, मैं केवल उनको दिखा सकती थी जिन्होंने मेरे साथ गोपनीयता की शपथ ली हुई है। मैंने वो संदेश अरुण जेटली जी को दिखाए, मैंने वो संदेश हरसिमरत कौर बादल को दिखाए। तो इसमें सबसे ज्यादा पंजाब के लोग थे। बादल साहब बार बार आते थे, आए हैं। लेकिन जब मैं पंजाब की फैमिलीज को मिली, 5 में से 3 बार मैं हरसिमरत कौर बादल को साथ लेकर मिली और उससे पहले मैं उनको वो संदेश दिखाती थी। और ये लेटेस्ट अपडेट रोज होता था, आज तक होता है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन रात को, क्योंकि मैंने वहां अलग एम्बेसडर भेजे थे। एक एम्बेसडर वहां है, एक अलग ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर वहां डिप्यूट किया था जिसको केवल ये काम दिया गया था। और वो ऐसे थे जो पहले वहां एम्बेसडर रह चुके थे, श्री सुरेश रेड्डी, उनको भेजा था। हर दिन संपर्क होता था, लिखित में संदेश हैं। जिस रेड क्रिसेंट की बात कर रहे थे भाई केसी त्यागी जी, रेड क्रिसेंट का भी संदेश था। संस्था है इसलिए मैं नाम ले सकती हूँ, बाकी सोर्सेज का नाम नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैंने सोर्स डिस्क्लोज कर दिया तो 24 घंटे वो जिंदा नहीं रहेगा। सबसे पहले उसका सरकलम कर दिया जाएगा। हालात वहां कैसे हैं? मोसुल को जिन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है उनकी सरकार नहीं है, और जिनकी सरकार है उनका मोसुल पर कोई कंट्रोल नहीं है। कितने विषम परिस्थितियों में हम ये काम कर रहे हैं, इसको सदन समझे। लेकिन हमारे पास रोज ये संदेश आ रहा है जिसमें 6 लोग कम से कम ये कह रहे हैं कि वो मारे नहीं हैं। हम केवल इस बात में लगे कि हमें कोई सबूत दे दो। अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। डायरेक्ट संपर्क हमारा नहीं है, और ये बात मैंने हर बार कही है, बाहर भी, उनके सदस्यों से बात करते हुए भी और सदन में भी, कि डायरेक्ट मेरा कोई संपर्क उनसे नहीं हुआ। लेकिन जिन सोर्सेज से संपर्क हो रहा है वो सोर्सेज ये कहते हैं कि वो मारे नहीं गए हैं, वो जिंदा हैं। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ एक सोर्स है जिसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। भाई प्रमोद तिवारी कह रहे थे शब और हसन के बयान के बारे बताएं। आप बयान देखिए, मैंने कल पूरा का पूरा बयान देखा। शबी और हसन अपनी ओर से रहे हैं, हरजीत को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हरजीत को कोट कर रहे हैं। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, क्योंकि हरजीत की कहानी के मुताबिक बांग्लादेशी छोड़ दिए गए और इनको ले जाया गया। तो बांग्लादेशी जो बोल रहे हैं शब्बी और हसन, वो चश्मदीद गवाह नहीं है, वो तो छोड़ दिए गए, वो तो चले गए। इसलिए शब्बी और हसन का बयान एक सेकेंडरी एविडेंस, वो भी किसी के द्वारा बताया गया, हरजीत के द्वारा बताया गया। हरजीत को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं,
पहली बात, वो चश्मदीद गवाह नहीं है, उन्होंने नहीं जाकर देखा कि मार दिए गए। हरजीत को वो सपोर्ट नहीं कर रहे कि हाँ मार दिए गए, क्योंकि वो कैसे सपोर्ट कर सके। हरजीत को कोट कर रहे हैं। जितनी कहानियां ये आई हैं, जितनी बार आई है, हर कहानी का सोर्स एक है, हरजीत। अब एक हरजीत है जो कहता है वो मार दिए गए, और 6 सोर्सेज हमारे हैं जो कहते हैं वो मारे नहीं गए। मुझे ये सदन बताए कि उनका हरजीत की बात को सच मानकर उनकी तलाश छोड़ दूं। ये जो 6 सोर्सेज हमें उम्मीद दिखा रहे हैं कि वो मारे नहीं गए, इसलिए ये तलाश जारी रखूं। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी का भी तकाजा यह है कि मैं ये तलाश जारी रखूं, और बुद्धिमत्ता का भी ये तकाजा है कि मैं तलाश जारी रखूं। मैं ये मानती हूं अगर 99% भी हरजीत सच है और 1% उनके बचने की गुंजाइश है, तो वो 1% मुझे ये आशा दिखाता है और प्रोत्साहित करता है कि मैं उनकी तलाश जारी रखूं और उनको वापस सुरक्षित निकाल कर लाऊं। इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया। तभी मैंने हाथ जोड़कर ये निवेदन किया था, मत कहिए दैट दे हैव बीन किल्ड, यही कह सकते हैं ज्यादा ज्यादा, दे हैव बीन रिपोर्टेडली किल्ड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने कोई बात गलत न कभी सदन में कही है न बाहर कही है। उन सारे परिवार के सदस्यों से 5 बार मिलकर जब हरजीत की बात आई कि हरजीत मसीह ये कह रहा, मैंने यही कहा कि मैं उसको अभी स्वीकार नहीं कर रही, आप भी स्वीकार न करें। सरकार आगे बढ़ रही है, प्रयास करें, हमारे प्रयास दिन रात जारी है। पिछली बार जब वो मिलने आए अभी 15 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस अफसर के थ्रू कुछ निकला नहीं, आप नए अफसर लगा दें। तो मैंने कहा हम ये भी कर देते हैं। हमने उनकी जगह 2 अफसर, एक की जगह 2 अफसर लगाए, और वो दोनों अरेबिक बोलने वाले लगाए। और सुरेश रेड्डी जी के जहां जहां संपर्क हो चुके थे, सारे सोर्सेज उन्होंने उनको दिए कि मैं इस ट्रैक पर चल रहा हूं। वो 2 नए अफसर वहां पहुंच गए, वो 2 नए अफसर अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें कोई श्रेय की होड़ नहीं है। हमने केरल में भी चांदी जी के साथ बैठकर योजना बनाई थी, तो मैंने कहा ई अहमद, उनका गल्फ में बहुत अच्छा संबंध है, उनसे मैंने कहा आप मदद करिए, ये कोई सरकार का मामला थोड़ी है, देश का मामला है, जो भी मेरी मदद कर सकता। तो उन लोगों ने कहा जब परिवार के सदस्य, आप ई अहमद को भी जी कह दीजिए। मैंने बुलाकर कहा ई अहमद साहब आपके गल्फ से बहुत अच्छे संबंध है, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तो जहां से, जिस पार्टी से देश या विदेश में हमें मदद मिलने की संभावना है, हम उनसे मदद ले रहे हैं। अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं कि हमने जमीन आसमान एक किया हुआ है, तो गलत नहीं होगा। और जैसा आप में से बहुतों ने कहा कि वो सही निकले, देखिए मेरे पास कोई ठोस सबूत आज ना उनके जिंदा होने का है, ना कोई ठोस सबूत उनके मरने का है। लेकिन मैं ये कहती हूं कि जिस दिन ठोस सबूत एक भी व्यक्ति पुष्टि करने वाला मिल गया हरजीत की बात का, एक भी व्यक्ति, तो कभी एक भी व्यक्ति और नहीं है जो हरजीत की बात की पुष्टि कर रहा हो। मैं एक मिनट, मुझे केवल एक बात आपसे जानकारी चाहिए। हम सब चाहते हैं, आपसे सहमत हैं, सारा सदन ये प्रार्थना करेगा कि वो जीवित रहे, सुरक्षित रहे। पर ये जो खबर आई है, खबरों के आधार पर ही आज ये बात उठी है, वो निराधार हो, सब चाहता है, पूरा देश चाहता है। तो एक मेरा आपसे निवेदन है, गोपनीयता बनाए रखते हुए क्या आप सदन को ये बताने की कृपा करेंगे कि जो 6 सूत्रों के द्वारा आपको खबर मिली है, सूत्र गोपनीय रखें। रेड क्रिसेंट तो एक संस्था है, वो तो वहां काम कर रही है, उसमें कोई गोपनीयता की बात नहीं है। क्या उनको लोकेशन का पता लगा है, हमारे राजदूत को, वहां की सरकार को, कि लोकेशन क्या है? क्योंकि वहां से वो ले गए, फिर कहीं पहाड़ियों में ले गए, क्या लोकेशन का है? क्योंकि मैंने एक बात कही थी 22 तारीख को, माननीय उपसभापति महोदय जी, सरकार का एक वक्तव्य था 22 जून का कि सरकार ने ट्रैक कर लिया। आप उसको निकाल ले, मैं भी सदन में रख सकता हूं। अगर ट्रैक कर लिया है तो लोकेशन मालूम होगी, ये सिर्फ बता। नहीं आनंद भाई, मैंने ये कभी नहीं कहा था, ये कभी नहीं कहा कि ट्रैक कर लिया। हमने ये कहा हम संपर्क बनाए हुए, हमने ये कभी नहीं कहा। हाँ नहीं है नहीं जी, 22 तारीख को सरकार का बयान है, 23 तारीख के सब समाचार पत्रों में छपा है। मैंने जब नहीं कहा तो कौन कहेगा? मैंने ये नहीं कहा कि एमईए का बयान है। और जैसे मैं अपनी एमईए कौन, मैं या स्पोक्स आप आश्वस्त कर दें
वो मैं इसमें बहस, इसको विवाद में नहीं लाना चाहता। एक वास्तविकता आप खुद उसका पुष्टिकरण कर लें कि ये बयान दिया गया, सारे समाचार पत्रों में छपा। अगर लोकेशन बता दूं तो गोपनीयता भंग हो जाएगी। हाँ, कि ये बयान दिया गया कि गवर्नमेंट हैज ट्रैक्ड। ये बयान नहीं दिया गया, बयान वही है जो मैंने सदन में दिया, जो मैंने बाहर दिया, जो स्पोक्सपर्सन ने सदन में, जो स्पोक्सपर्सन ने बाहर दिया। और बयान ये है कि हमारे सूत्रों के द्वारा हम उनके संपर्क में हैं। कि हमारे सूत्रों के द्वारा हम उनके संपर्क में हैं, डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मैं अभी भी जैसे कह रही हूँ कि मैंने अपने 2 साथियों से भी वो सारे संदेश शेयर किए हैं और संदेश रोज आ रहे हैं, लेटेस्ट संदेश रोज आ रहे हैं। कल भी रात का संदेश मेरे पास है जिसमें यह कि वो मारे नहीं गए हैं। और मैं वही कह रही हूं कि जिस दिन मुझे हरजीत की बात को कोरोबरेट करने वाला एक भी सोर्स मिल गया तो मैं यहां ये कबूल कर लूंगी। लेकिन अगर मेरे दूसरे सोर्सेज ईश्वर करे कि वो सही निकले तो उनको लाकर उपस्थित कर दूंगी। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूं कि इस तरह के ऑपरेशन की सफलता का बुनियादी सिद्धांत होता है गोपनीयता। उस आप प्रयास करें, हम सब चाहते हैं इस प्रयास में आप सफल हो, पर आप सफी की बात का हम विश्वास नहीं करते। पर कहानी कुछ इस तरह है, 40 लोग थे, हरजीत उसमें से भाग निकला, वो उससे परिवार के फोन पे भी बात हो रही है। ये कल के जो हम लोगों ने देखा था उसमें था। मेरा सिर्फ एक सीधा सा सवाल है, आज सरकार भी दुख हुआ थोड़ा सा, आप भी बहुत श्योर नहीं है, आप ये बता नहीं पा रही हैं, थोड़ा हमारी चिंता और बढ़ गई इस बात से। फिर भी जो थोड़ी उम्मीद है उस पर हम आपको बल देते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, हरजीत तो बाहर भागा हुआ है, हरजीत से संपर्क कर लीजिए। उसके भाई ने कहा है कि अगस्त के बाद उससे बात नहीं हुई। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हरजीत तो कम से कम हिंदुस्तानी है, वो तो उसे छूट चुका है। उसका कहना है उसे 2 गोली लगी थी, उसे लोग मरा समझ के छोड़ गए थे, वो चकमा देके भाग निकला। ठीक है, तो हरजीत से अगर आपका संपर्क हो तो सदन को बता दें हरजीत क्या कह रहा है। इतना अगर बता दें तो शायद हमें एक नई उम्मीद की किरण दिखाई पड़ जाए, वरना तो सरकार आज मुझे इतनी लाचार दिख रही है कि हमें दुख हो रहा है। प्रमोद जी, हरजीत जो कह रहा है वो तो मैंने अभी बता दिया, लेकिन हरजीत गवर्नमेंट की प्रोटेक्टिव केयर में है, क्योंकि हरजीत की जान को सबसे ज्यादा खतरा है। वो व्यक्ति वहां से निकल भागा है, सबसे पहला शिकार वो है, और उसके कारण से और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं सदन को एक बात के लिए आश्वस्त करती हूं, हरजीत पूरी तरह ठीक ठाक है, हरजीत सुरक्षित है, हरजीत सरकार की प्रोटेक्टिव केयर में है। बस इसके साथ साथ मैं आप सबसे, अब प्लीज विप्लव जी, हो गया ना बीच में, मैंने सबको इसीलिए बोलने दिया, उसके बाद बोल रही हूं। जो बात प्रमोद जी ने पूछी वो बहुत वैलिड थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि हरजीत सरकार की प्रोटेक्टिव केयर में है, हरजीत सुरक्षित है, हरजीत ठीक ठाक है। और मैं आप सबसे भी यही कहती हूं कि जिस रास्ते में चली हूं, पहला विकल्प छोड़कर दूसरा विकल्प तलाशने का, मुझे ये सदन अनुमति दे कि मैं उसी रास्ते चलूं और हम ईश्वर से प्रार्थना भी हों और वापस लौट आएं। धन्यवाद। Now let us hope for good news and let us pray for them. इस यात्रा पर दूंगी। आज के दिन को डाइल्यूट मत करिए। Okay. ये चर्चा डाइल्यूट होती है, No, ये चर्चा डाइल्यूट हो जाएगी। That is मैं enough. अगले हफ्ते आऊंगी तब That's इस पर enough. चर्चा करेंगे। That's enough. It's over. What? No, that. सर हमें सुनिए That's okay. सर एक मिनट राजीव Mr. Deputy Chairman, sir, last few days, this House has witnessed expression of anguish and outrage by large number of our members on the issue. Please. No, I have to go for sure. Please. No. Please. No other subject. No, you I can just take up. want an assurance. No. We have given a notice to the chairman that there will be a structured discussion. You have given on notice? the matter that the notice has been given. Okay. And we want to assure our members No, that there will be a structured discussion
on the renaming No. issue of the airport Yes, yes. in Hyderabad. You listen to me. Please accept No, that. please. Please accept that. If We have given the notice, notice. you don't want to listen, sit down. We have given the notice. Yes, if notice is given, Honorable Chairman will examine it and may consider it. Go back to your seat. No, after giving a structure, notice for structure discussion, you cannot do this. We have given a notice. I am go back please. See, I am, since since Mr. Ananda Sharma has said here, he has given a notice. Yes, from your side, notice has been given for structured discussion. That notice, if it is already given, the Honorable Chairman may consider it and inform the decision. It will be considered by the Chairman. Yeah. Now I am going to zero over Sri Kanwardeep Singh. Yeah. Kanwardeep Singh. Thank you, sir. Sir, this is regarding the deadly disease of cancer in the country. Recently, media had highlighted that in a village in Greater Noida of NCR, almost every household has cancer patients. When a survey was conducted by authorities, similar situation was found in other villages too in Greater Noida. In the recent past, similar cases of cancer patients were found in some villages of Punjab, and media had reported that cancer of the villages of Punjab going for treatment to Rajasthan by a specific train named as locals as cancer train. However, cancer cases in Greater Noida and villages in Punjab may be due to contamination of dangerous chemicals and metallic substances in the groundwater. But even when otherwise, this dreaded disease is spreading very fast in our country. Cervical cancer amongst women, in particular belonging to poor families, is spreading. Cases of mouth cancer, lung cancer due to chewing of raw tobacco through various means and smoking of BD, cigarette, etc. are also on the rise in the country. On the other hand, there is acute shortage of cancer specialists in the country. Detection of cancer and its treatment facilities are not available in the vicinity. As a result, by the time the patient reaches a diagnostic center, it is already too late. However, this painful disease has to be controlled. Hence, I request that the government must take up this dread disease seriously. The groundwater of villages reporting higher number of cancer cases must be tested to find out the contamination. In such areas, only treated groundwater should be given for human consumption, as well as for the livestock. For this, water treatment plants should be established at all the places, the affected places. Use of raw tobacco to be discouraged vigorously. Cancer diagnostic centers should be established in all the district hospitals, and a specific or a special ward with sufficient number of beds for treatment of cancer cases should be set up with central funding in such hospitals along with necessary medicines and requisite therapies. Medical colleges should encourage, sir, I am talking about government hospitals. Medical colleges should encourage students to opt for oncology and radiology to increase the number of cancer specialists in the country. Okay. A massive information campaign be launched through print and electronic media to educate the masses about the painful and dreaded disease. Sri Vishwambar Prasad Nishad. Yes. All names who are associating names may be added in the list. माननीय सभापति महोदय जी, मैंने शून्यकाल में उत्तर प्रदेश में उर्वरक की कमी के बारे में बताया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने प्रधानमंत्री अक्टूबर में 8.50 लाख टन यूरिया उपलब्ध कराने के बारे में, जिसमें सहकारी क्षेत्र में 4.50 लाख टन और निजी क्षेत्र में 4 लाख टन मात्रा में नहीं भेजी गई है, क्योंकि प्रदेश सरकारें उर्वरक के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहती हैं। और मैं बुंदेलखंड से हूँ, वहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी है मानवर,
चित्रकूट धाम में 4 जिले पड़ते हैं, वहाँ फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी होती है। वहाँ एनपीके उर्वरक पड़ता है मानवर, वहाँ 1335 मीट्रिक टन की मांग की गई थी, जिसमें मानवर वहाँ स्टॉक में नदारत रहा। और चूंकि बुंदेलखंड का किसान वैसे परेशान रहता है, तो मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि जो हमारी प्रदेश सरकार ने मांग किया है, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री मनसुख अल मंडाविया, प्लीज। सर, अभी जो बदलते हुए समय में रोड पर हुए एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। जो मैं कल अखबार में देख रहा था, एक साल में सारे हिंदुस्तान में कुल मिला के 2 लाख लोगों का रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर यूथ होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, और जो यूथ का एक घर में एक्सीडेंट हो जाने से सारा परिवार पर उनकी इफेक्ट होती है। परिवार में जो मुख्य व्यक्ति है वो चला जाता है, उनकी भी एक परिवार में असर रहती है। सर, मेरा अनुरोध है कि जो लोग अपनी लाइफ गुमा देते हैं, कितने ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको ब्रेन में शॉट लगती है और उसका ब्रेन डेड हो जाता है, लेकिन उनका बॉडी जीवित रहता है। वैसी स्थिति में हमारे देश में ऐसी भी बहुत लोग हैं जिसको अपने ऑर्गन्स की बॉडी में ऑर्गन्स की आवश्यकता रहती है, उसमें कोई ना कोई बीमारी रहती है। वैसी स्थिति में लीवर है, किडनी है, ऐसा ऑर्गन्स जो उसको रिप्लेस किया जाए तो उसकी लाइफ बन सकती है, लाइफ बच भी जाती है। जैसे हम परिवार में कोई सदस्य घुमाते हैं, वैसे कोई सदस्य को लाइफ भी मिल सकती है। इसलिए ऐसे जो लोग हैं उसका ऑर्गन्स के लिए एक बैंक बनाई जाए, और जो ऑर्गन्स को अच्छी तरह से रखने के लिए सभी स्टेट में एक ऑर्गन्स बैंक हो, और वो बैंक में उसको अच्छी तरह से रखे जाए, और जो नीडी पर्सन है जिसको जरूरियात है वैसे लोगों को उसका उपयोग के लिए दिया जाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन द इनिशिएटिव एंड सभी को सपोर्ट करे, और स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिव दे, जैसे कि सभी स्टेट में ऐसी बैंक बने और ह्यूमन ऑर्गन्स उसमें अच्छी तरह से रखा जाए, और ह्यूमन ऑर्गन्स से और दूसरे की लाइफ दी जाए, और दूसरे को अपनी लाइफ मिले और उनका परिवार बच जाए। धन्यवाद। श्री तरुण विजय। अध्यक्ष महोदय, भाषा केवल शब्दों और वाक्यों का संयोजन नहीं, वरन संस्कृति और सभ्यता की संवाहिका होती है। वह केवल एक भीड़ नहीं है, बल्कि उसमें अतीत का इतिहास, वर्तमान का सत्य और भविष्य की आशा होती है। यह भाषा विवाद का विषय न बने, बल्कि भाषा सेतु बने। The language should not be a barrier, but it should be a bridge. That is the reason मैं आज बताना चाहता हूं कि जो भाषा के ऊपर विवाद नहीं हो। तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत में 2000 साल से पहले हुए सर, लेकिन मैं उत्तर भारत में जाता हूं, उनसे तिरुवल्लुवर का नाम पूछता हूं तो कहते क्या, कौन तिरुवल्लुवर, किसके बारे में पूछ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, भारत केवल तुलसी और वाल्मीकि ही नहीं है, भारत कन्नगी और तिरुवल्लुवर भी है। उसके बिना भारत अधूरा है, जो हम संघ के प्रातः स्मरण में नायन मारा लवा राष्ट्र, तिरुवल्लुवरस तथा और साध्वी कन्नगी, इन सब के नाम लेते हैं। अतः मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैं हिमालय से कहूं तमिल अन्नैक मुदल वणक्कम, तमिल अन्नैक मुदल वणक्कम, तो इसका अर्थ है कि हम हिमालय के लोग सब आपको प्रणाम करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मुदल एडु तेल्लम आदि भगवान मुदैत्र उड़गु, ये कुरल है, तिरुकुरल का है। इसलिए तिरुवल्लुवर का जो जन्मदिन है और उनका जो जीवन है उत्तर भारत के सभी राज्यों में मनाया जाना चाहिए, उत्तर भारत के विद्यालयों में मनाया जाना चाहिए, और उनकी जीवन कथा सभी राज्यों के विद्यालयों में प्रधानाचार्य बताएं, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में है, सभी भाषाएं अच्छी है, कन्नड़ है, बंगला है, तेलुगु है, और भारत के जो मेमोरी रजिस्टर गया, यूनेस्को का मेमोरी रजिस्टर, उसमें एकमात्र भाषा गई तो तमिल गई यूनेस्को की मेमोरी रजिस्टर में। उसके प्रति हमें सम्मान करें और ये सेतु बनाएं, और तिरुवल्लुवर को हम अगले वर्ष पूरे देश में मनाएं।